तो स्टूडेंट्स अब इस टॉपिक को हम एक बार इंग्लिश में स्टडी करते हैं। व्हाट इज दिस कोलॉइडल सॉल्यूशन। इससे पहले हमने सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन को स्टडी किया है, तो अगर बाय चांस आपसे वो वीडियो मिस हो गई हो तो उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि मिल्क एंड वाटर, तो व्हेन मिल्क इज मिक्स्ड विद वाटर, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर रहा है। और इस हीट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल साइज कैसे हैं, पार्टिकल साइज दे आर बिगर देन अ ट्रू सॉल्यूशन बट दे आर स्मॉलर देन सस्पेंशन, यानी कि इनके जो पार्टिकल साइज है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में रिसाइड करते हैं। और ये मिक्सचर जो है इट seems to appear homogeneous but actually it is a heterogeneous mixture. So such type of solutions are known as colloidal solutions. Now as we have seen in a true solution there is a solute and solvent. So similarly in colloidal solution we have two parts. One is known as a dispersed phase and second is the dispersion medium. So as we have seen an example of milk and water, so in case of milk and water, the milk is the dispersed phase and water is a dispersion medium. So that means the fats and proteins which are present in milk, it is a dispersed phase and water will be the dispersion medium. Now what are the properties of these colloidal solution? First of all, it is a heterogeneous mixture which is stable in nature. And second, the size of these particles of the colloid, they are too small to be seen with the naked eye, but they are big enough to scatter the beam of light passing through it. That means these particles or this colloidal solution is showing Tyndall effect. स्टूडेंट्स ये टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड एक एक्टिविटी की वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। Now let us see the examples of these colloidal solutions. Now as we have studied about the dispersed phase and dispersion medium, different types of colloids are aerosol, foam and emulsion. The examples are fog, cloud, mist in case of another example is smoke, automobile exhaust. Examples of foam are shaving cream, emulsion, milk and face cream. And here we have given the dispersed phase and dispersion medium. तो अगर हम fog, cloud या mist की बात करें तो इसमें dispersion medium गैस है और dispersed phase liquid है। Similarly smoke, automobile, exhaust में अगर हम देखें तो dispersion medium हमारी गैस है और dispersed phase जो है वो solid है। Similarly in shaving cream, dispersion medium is liquid and dispersed phase is gas. And in case of milk and face cream, dispersion medium is liquid and dispersed phase is also a liquid. Students, तो ये इस तरह के जो dispersed phase और dispersion medium पूछा जा रहा है, तो ये इस तरह के questions generally exam में पूछा जाता है कि आपको ये examples दिए हैं और इनका dispersed phase and dispersion medium आपसे पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चंस को स्टडी करने से पहले एक बार हम ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, तीनों में क्या डिफरेंसेस है, एक क्विक रीकैप उसका करते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, ये तीनों तरह के मिक्सचर्स हैं। अब जिसमें ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, कोलॉइडल इज बिगर देन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे बिगेस्ट होते हैं, इसलिए हमें नेकेड आई से दिखाई देते हैं। कोलॉइड के हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, उसी तरह से ट्रू सॉल्यूशन के भी हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते। और जो ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, कोलॉइड जो है इट सीम्स होमोजीनियस बट इट इज अ हीट्रोजीनियस एंड सस्पेंशन इज अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो पार्टिकल्स जो हैं वो उसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, कोलॉइड में भी सेपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन सस्पेंशन में दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। नाउ ट्रू सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट, colloid is translucent and suspension is opaque. और जो solutions हैं they are stable, उसी तरह से colloid भी stable है जबकि suspension unstable है। Solutions they do not show Tyndall effect और जो colloids हैं वो Tyndall effect show करते हैं, और suspension जो है they may or may not show Tyndall effect, यानी कि जब उसके particles suspended रहते हैं तो वो Tyndall effect show करते हैं, और जब particles उसके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तब वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। नाउ एट्थ पॉइंट, सॉल्यूशंस डिफ्यूज रैपिडली थ्रू फिल्टर पेपर वेल एज पार्चमेंट पेपर, और जबकि कोलॉइड पार्टिकल्स हैं दे पास थ्रू फिल्टर पेपर और सस्पेंशन में दे डू नॉट पास। नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं वो हम क्योंकि हमें तीनों के डिफरेंसेस समझ में आ गए हैं तो हम एग्जांपल्स और अपने आसपास इनको स्टडी कर सकते हैं।
अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइड। तो अभी हमने तीनों तरह के सॉल्यूशंस को हम स्टडी किया, तो उसमें से हम कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन के डिफरेंसेस को हम लिख सकते हैं। नाउ राइट द डिस्पर्जन मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज इन केस ऑफ स्मोक फॉग एंड क्लाउड। तो अगर हम स्मोक की बात करें तो इसमें डिस्पर्जन मीडियम गैस है और डिस्पर्स फेज सॉलिड है, जबकि फॉग और क्लाउड में अगर हम देखें तो हमारा डिस्पर्जन मीडियम गैस है और डिस्पर्स फेज लिक्विड है। अब स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कोलॉइड सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट इट इज हेट्रोजीनियस, एक्सप्लेन। तो जैसा कि हमने इसमें देखा था स्टार्टिंग में ही कि दिस कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर which appears to be homogeneous. Why? Because in this mixture particle size they are bigger than the particle size of a true solution but smaller than the particle size of suspension. So that is the reason that the mixture which is actually a heterogeneous but appears homogeneous in nature. और last question अगर हम अपना देखें आज के इस टॉपिक में, तो select the colloid from the given mixture. So soap and water and fog, these are the two colloidal solution. So hope students this worksheet must be clear to you. If you haven't subscribed my channel, do subscribe it, and thank you for watching this video.